وہی نا، آپ جب خود کہتے ہو کہ ہم 12 اماموں کو مانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو جیلانی 14 معصومین میں سے نہیں ہے، 12 اماموں سے نہیں ہے، بھائی ان کو چھوڑ دیں آپ جو ہے نا، جس طرح آپ ادعا کرتے ہیں کہ ہم صرف 12 امام کو مانتے ہیں، 14 معصومین علیہ السلام کو مانتے ہیں، تو آپ ان کی اتباع کریں، 12 اماموں کی اتباع کریں، 14 معصومین علیہ السلام کی اتباع کریں، اور جیلانی وغیرہ ان کو نہ کوئی حدیث ہے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی، آپ جیلانی کی اتباع کریں، ٹھیک ہے نا؟ اوکے. تصوف میں جو معیار ہے ماننے کا، وہ رسول کے بعد جتنی بھی ان کی آل ہے ان کو مانا جائے، ان کی تعظیم کی جائے، ان سے محبت رکھی جائے. اطاعت تو 12 امام کی بات، جو ان کی اولادیں ہیں، سادات ہے، سید ہے، تو ان کی بھی عظیم ہم پر محبت سید کرنا ہم بہت پر ہے دنیا واجب میں ہے. میرے بھائی، سید دنیا میں کم نہیں ہے، سید دنیا میں بہت ہے، سادات جی کی اتباع پہ ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے نا؟ سادات بہت زیادہ ہیں، سادات ایسے ہیں دنیا میں، سادات شیعہ ہیں، سادات کٹر وہابی ہیں، سادات ایسے ہیں جو بالکل بے دین ہیں، بالکل ایتھیسٹ بن گئے ہیں. کس نے کہا کہ آپ نے سادات کی اتباع کرنی ہے؟ بھئی یہ بہت بڑا قبیلہ ہے، میں اور تو سب 12 کچھ امام کچھ کی کچھ بات کر رہا ہوں. سادات جو ہے نا صحیح سادات ہیں، کچھ جھوٹے سادات ہیں. وہ جو صحیح سادات بھی ہے نا، جی اس طرح نہیں کہ سب صالح لوگ ہیں. ائمہ طاہرین علیہ السلام کے فرزند ہوتے تھے، وہ ائمہ علیہ السلام خود ان کے متعلق فرماتے تھے کہ یہ جو ہے غلط لوگ ہیں. اس طرح نہیں ہے کہ وہ لیکن جو اللہ یاری ان کے صاحب، صلب میں سے یہ بلا پوچھنا چاہتا واسطہ ہوں نکلتے تھے. میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں کہ حضرت سید عبد القادر جیلانی کے بارے میں آپ کے پاس ایسے کیا دلائل ہے کہ جن کے بنا پر آپ انہیں یا دیکھیں بھائی، پسند ہم نہیں کرتے صوفیوں ہیں، کو، یا اب میں آپ کو ناراض نہیں کرنا چاہتا تھا، آپ نے کہا کہ ہم صوفی ہیں. بھائی ہم اہل بیت علیہ السلام نے صوفیوں کو لعنت کیا، ان کی تکفیر کی، اور حکم دیا کہ آپ صوفیوں سے بچیں، اور یہ گمراہ ہیں، اور یہ جو ہے بدعتی لوگ ہیں. تو اس طرح ہمارے پاس یہ احادیث ہیں اہل بیت علیہ السلام سے. تو صوفی جو ہیں، صوفی حضرات، ٹھیک ہے، آپ صوفیہ جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے محبت کا اظہار کرتے ہیں، یہ اچھی بات ہے، لیکن اس طرح نہیں کہ جو بھی اہل بیت علیہ السلام سے نہیں. ایک محبت منٹ کرتا اللہ ہے یاری وہ صاحب، سب اس کے کام سے ہی ہیں، ٹھیک ہے نا؟ میں اب جی جی سر، جی یہ ہے، ہم صوفیوں کی اس لیے تائید میں نہیں یہ کرتے کہہ رہا کیونکہ ہوں ان کہ کے پاس بدعات ہیں، ان کے پاس ہندوستان میں بدعات ہیں، اور اہل بیت علیہ السلام نے ان کی تائید نہیں کی، ان سے منع کیا، بلکہ لعنت کی ہے صوفیوں کو. جی میں اللہ یاری صاحب، میں ایسا مزاج رکھتا ہوں، بس میں ہی نہیں، ہندوستان میں جتنے بھی خانقاہ ہے، درگاہ ہے، سب کا یہی ماننا اور کہنا ہے کہ پچھلے وقت میں جو صوفی تھے، جنہوں نے جو کیا، یا بدعت اسلام میں لائے، یا خرافات جیسی حرکتیں کی، واللہ عالم بالصواب، لیکن ہمیں ان صوفیوں سے کوئی مطلب نہیں ہے. ہم حالرہ کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اور جانتے ہیں کہ اگر ہند و سندھ میں اگر لوگوں کے دلوں میں محبت اہل بیت، مودت اہل بیت کی توفیق آئی ہے، تو اس کا سب سے بڑا اگر کوئی سبب ہے تو وہ صرف اہل تصوف ہے. یہ ابھی میں آپ کو بتاؤں، ہم ہندوستان میں دیکھیں، صوفی جی حضرات، میں اس بات کو مانتا ہوں کہ صوفی حضرات جو ہیں وہ اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار کرتے ہیں. اس طرح نہیں، دنیا میں کوئی نہیں ہے مسلمانوں میں جو اہل بیت علیہ السلام سے مودت کا اظہار نہ کرے. ابو بکر، عمر بھی مودت کا اظہار کرتے تھے. نہیں قبلہ، اجازت دیں، مسلمانوں میں بہت سے ایسے لوگ جن ہیں لوگوں نے امام حسین علیہ السلام پہ تیر چلایا تھا، وہ لوگ بھی امام حسین علیہ السلام کی مظلومیت پہ بھی انہوں نے بھی رویا ہے، انہوں نے بھی اشک بہایا ہے، ٹھیک ہے نا؟ اس طرح تو ہوتا ہے. یعنی ابن تیمیہ بھی اس کے مختلف کتب میں جا کے دیکھیں، ابن تیمیہ جو اتنا کٹر وہابی ہے، جتنا کٹر ناصبی، وہ مودت کا اظہار کرتا ہے. ہم مانتے ہیں کہ صوفی حضرات اپنے اشعار میں، اپنے گفتگو میں 12 اماموں نہیں. سے، اللہ 14 یاری معصومین، صاحب، ایک منٹ، آپ نے سمجھا نہیں، آپ نے مودت جی کا اظہار کرتے ہیں، لیکن مودت، صرف مودت کا اظہار یا محبت کرنا یہ کافی نہیں ہوتا بھائی، اتباع بھی ضروری ہوتا ہے. اب آپ کہتے ہیں نا کہ ہندوستان میں جو اہل بیت علیہ السلام سے مودت ہے یہ صوفیوں کی بدولت ہے. میں آپ کی بات کو نہیں مانتا، یہ آپ کی بات صحیح نہیں ہے. جو لوگ شیعہ ہیں، یہ تو بات بالکل واضح ہے کہ یہ صوفیوں کی وجہ سے یہ شیعہ نہیں ہوئے. جو لوگ شیعہ ہیں، کیونکہ اکثر صوفی جو ہندوستان میں وہ شیعہ ہیں ہی نہیں، وہ ابو بکر عمر کے ماننے والے ہیں. جو لوگ شیعہ ہیں، یہ کس طرح شیعہ ہوئے ہیں؟ یہ تو جو شیعہ علماء آئے تھے پچھلے زمانوں میں، انہوں نے تبلیغ کیا ہے. شیعہ جو قبائل آئے تھے، شیعہ گھرانے آئے تھے، اور بعض علاقوں میں شیعہ حکمران تھے، ان کی وجہ سے لوگ شیعہ ہو گئے ہیں. اور مثلا بعض لوگ شروع سے شیعہ تھے، یعنی ہندوستان وہ آئے تھے، مثلا ایران سے آئے تھے، وہاں سے ظلم ہو رہا تھا، یہ لوگ آئے تھے. تو تشیع جو ہے یہ صوفیوں کی وجہ سے نہیں. اب جماعت مخالفین میں جو لوگ محبت کا اظہار کرتے ہیں، اس طرح نہیں کہ سب وہ صوفیوں کی وجہ سے.
जमात मुखालिफिन के कुतुब में अहादीस बड़ी पड़ी हैं भाई, जो लोग सूफी नहीं भी है ना, उनकी किताबों में भी अहादीस बड़ी पड़ी हैं कि अहले बैत अलैहिस्सलाम की इज्जत करनी चाहिए, अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत करनी चाहिए। अब जो है आप इस सब का क्रेडिट दे दें सूफियों को, मैं आपसे इत्तेफाक नहीं करता। बहरहाल नहीं हमारा मैं मौजू जो अल्लाह है, यारी साहब मैं सबकी हमारा बात नहीं मौजू कर रहा, अब हमारा मौजू आप तसव्वुफ सुनिए नहीं है तो। मेरे भाई, हमारा मौजू है खिलाफत अबू बकर। अब आप जो है ना 2-3 मिनट बात करें, 4-5 मिनट बात करें, आप इतने इंतजार में रहें, तो उसके बाद मैं इंशाल्लाह तबारक व तआला इस मौजू पे बात नहीं करूंगा। बिस्मिल्लाह करें। नहीं मैं एक चीज और अर्ज करूंगा कि हिंदुस्तान में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती साहब की मज़ार है रजी अल्लाह ताला अन्हु की। उनके मज़ार पे लिखा हुआ है दीन अस्त हुसैन दी पना अस्त हुसैन। उन्होंने हमें सिखाया कि मुसलमानों दीन हुसैन है। अभी कर्नाटका में ख्वाजा गैसु दराज बंदा नवाज की जो मज़ार है, वहां पे उनके दरवाजे पे लिखा है ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। ये बात तो हमारे तसव्वुफ में हमें सिखाई जाती है, जिसके बिना पर हम 12 इमाम को मानते भी, उन्हें पसंद भी करते, उनकी अता करते हैं और उनके दुश्मनों पे तबर्रा भी करते हैं और बेजारी का इजहार भी करते हैं, अव्वल अच्छी बात इमाम है। से लेके आखिर इमाम तक। अभी हालत हाजरा में अभी आपने देखा होगा एक क्या नाम है एक सईद रिजवी और ये जो खादिम रिजवी ग्रुप था बरेलवी नासबियों का, इन नासबियों में से एक जो कुत्ता था जिसने इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम की जात पर भौंका था और गंदी गंदी गालियां दी थी। मैंने तो अहले तशय्युह हजरात में बहुत से कम लोगों को देखा जो उसकी मुखालिफत में कोई बात की हो, स्टेटमेंट दिया हो, बयान दिया हो, लेकिन अहले सुन्नत में अल्हम्दुलिल्लाह बहुत से लोगों ने उसकी मुखालिफत किया। खुद मैंने भी उसके बयान का रद्द किया, मुज़म्मती बयान मैंने कहा कि इमाम मेहदी अलैहिस्सलाम ये शियाओं के सिर्फ इमाम नहीं है, ये सारी कायनात के उम्मत के इमाम है। जिस तरह से रसूल पाक सारी उम्मत के नबी है, उसी तरह से इमाम मेहदी भी सारी उम्मत के इमाम है। बात दिफा की आती है तो हम सूफी लोग आगे बढ़ते हैं। बात अगर कोई दुश्मन पर बनता है और आता है, कोई दुश्मन अहले बैत की तारीफ करता है, तब भी हम खड़े होते हैं। इमाम मेहदी अली सलाम की जात हो, मौला अली अली सलाम की जात हो, जितने भी दुश्मनाने अहले बैत है, दुश्मनाने 12 इमाम 14 मासूमीन है, हम डंके की चोट पर हिंदुस्तान में नासबियों के मुंह को बंद करते हैं और उनको बताते हैं कि तुम्हारा ताल्लुक बनु उमैया से है और तुम हमेशा बनु उमैया का दिफा करोगे और अहले बैत पर उल्टी सीधी बातें। हमारा जो ताल्लुक है, आपने जो सूफियों को पढ़ा होगा तो आपने उन सूफियों को पढ़ा होगा जिन्होंने वहदतुल वजूद के इस चैप्टर को लेकर अपनी ही परस्तिश करवाई हो, अपने ही कोई मनवाया हो, लेकिन हम उस सूफी को मानते हैं जिन्होंने सारी जिंदगी अहले बैत को मनवाने की कोशिश की और अहले बैत का दीन हम तक पहुंचाया। हमने जो अहले बैत की मवद्दत और मोहब्बत को पाई है ना किबला, अहले तशय्युह से नहीं पाई है, हमने तो पाया है सूफियों से। हमने ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती से पाया है, हमने ख्वाजा गैसु दराज से पाया है, हमने सरकार वारिस पाक से पाया है, हमने साबिर पाक से पाया है। ये जो हिंदुस्तान के बहुत ही बेहतरीन सूफी हजरात है जिन्होंने सारी जिंदगी अहले बैत की खिदमत में लगा दी और अहले बैत की तबलीग में लगा दी, हम उनको मानते हैं। तो मैं आपसे ये किबला कि आपको दो लोग सुन्नत में भी बहुत से लोग हैं जो आपको पसंद करते हैं। ऐसी चीज नहीं है कि आपकी सब मुखालिफत करते हैं। आपको भले से अहले तशय्युह में कुछ लोग ना पसंद करते हो, लेकिन अहले सुन्नत में एक बहुत बड़ी आप मसलन शब जुमा किस तरह मुनाजात करो, मुख्तलिफ सहर के वक्त किस तरह मुनाजात करो, इस तरह मुख्तलिफ टाइप के रोज़े रखने हैं, तो मुख्तलिफ इबादात और नुसुक अहले बैत अलैहिस्सलाम ने हमें सिखाए हैं। इसमें किसी तरह का इस तरह जो सर सूफी हजरात पीरी कुछ मुरीदी का एक सिलसिला बात और करते हैं अर्ज ना, करना पीरी चाहूंगा। मुरीदी का सिलसिला करते हैं, वो चिल्ला निकालते हैं, रियाजतें करते हैं, उसमें इस तरह हमारे मजहब में नहीं है। ठीक है ना, जो आम जो सूफी हजरात जो काम करते हैं वो अहले बैत अलैहिस्सलाम की तालीमात में नहीं है। और अहले बैत अलैहिस्सलात वस्सलाम ने सूफियों से मना किया अपने शियों का। यही आपकी खिदमत में अर्ज कर सकते हैं। भाई आप हमारे भाई हैं, हम आपको आपके एहतराम और इज्जत करते हैं। नहीं सर, मैं एक चीज अर्ज करूंगा मैं कि मौला मुर्तजा अली सलाम की जात हो या 12 इमाम में से कोई भी अइम्मा अतहार अलैहिस्सलाम की जात हो, अगर कोई उनकी तौहीन करता है या उनकी मुखालिफत करता है या उनको शहीद करता है, हमारी मोहब्बत और मवद्दत का मायारी यही है कि हर दुश्मन अहले बैत हमारा दुश्मन है, हर दोस्त अहले बैत का हमारा दोस्त है। तो अगर सूफियाए कराम ने, जैसे मैंने मोइनुद्दीन चिश्ती सरकार का नाम लिया, सरकार वारिस पाक का नाम लिया, ये तो मोहब्बत करते हैं, तो हम इसलिए मोहब्बत करते हैं क्योंकि हमारा मायारी यही है कि दुश्मन अहले बैत हमारा दुश्मन और मुहिब अहले बैत हमारा दोस्त।
अभी ये देखें कर्नाटका में सरकार ख्वाजा बात यही है ना गैसुदारास कि बंदा नवाज की मज़ार है। बस जी, बस बात वहाँ यही पे है ना लिखा कि हुआ है सूफी कलमा ला हजरात अक्सर इलाहा यही कहते हैं, इल्लल्लाह सूफी हजरात मुहम्मदुर अक्सर यही रसूलुल्लाह अलीयुन वलीयुल्लाह। सूफी हजरात एक मिनट, अल्लाह दुनिया यारी में साहब प्लीज सूफी एक जो है एक ना, एक जितने सूफी आप जानते हैं ना, वो सब अहले बैत अलैहिस्सलाम से मवद्दत का इजहार करते हैं। लेकिन बात है इत्तिबा की मेरे भाई, बात है उनसे दीन लेना भी फरीजा है ना, नहीं, मैं दीन आपसे अर्ज लेना कर भी रहा हूँ ना, फरीजा है। इत्तिबा यही तो हम अब्दुल कादिर जिलानी अइम्मा वगैरह अतहार दीन की अहले बैत करेंगे। अलैहिस्सलाम से नहीं लेते हैं, दीन अहले बैत अलैहिस्सलाम से नहीं लेते, मोहब्बत का इजहार करते हैं। ठीक है, मोहब्बत का इजहार करना ये बेहतर है, नवासिब से बेहतर है, लेकिन ये काफ़ी नहीं है, इत्तिबा भी करनी जी, चाहिए ना, पैरवी भी, और नहीं दूसरों की नहीं, इत्तिबा सिर्फ अहले बैत नहीं, अलैहिस्सलाम की इत्तिबा करनी चाहिए। मैं अल्लाह यारी साहब आपको मैं बताऊं कि अहले सुन्नत में इस वक्त 4-5 सालों में ऐसा माहौल बन चुका है कि एक वक्त था लोग नहीं जानते थे कि मुआविया बिन अबू सुफियान की हकीकत क्या है, ये बनु उमैया के लोगों की हकीकत क्या है, फिर बात फदक की भी हो तो वो लोग नहीं जानते थे, लेकिन जब जानने लगे ना बहुत से ऐसे मसाइल को, जब वो पढ़े रिसर्च किए तो बात ऐसी हुई कि फिर उन्होंने अली बिन वलीउल्लाह का भी ऐलान किया और कहा कि हम गवाही देते हैं कि अली अल्लाह के वली है। उन्होंने बिला फसल भी माना मौला अली को। लेकिन और एक चीज मैं अर्ज करूं कि सिलसिला तरीका, सिलसिले सूफिया में जो शजरा तरीकत होता है, उस शजरे को अगर आप पढ़ेंगे ना किबला, तो अली वलीउल्लाह बिला फसल मौला अली मौला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तक पहुंचता है। हमारे यहाँ भी जी बिला फसल का चैप्टर है, कंसेप्ट है, मौला अली को हम बिला फसल मानते हैं क्योंकि शजरा तरीकत का हर शजरा हम पढ़ते हैं तो मौला अली तक वो शजरा रसूल तक जो पहुंचता बिला फसल पहुंचता है। तो मैं ये अर्ज कर बहुत रहा था, मेहरबानी आपकी। अहले सुन्नत में हिंदुस्तान में अगर कोई हक जानता है तो जानते हैं हजरत क्या होता है, वो जब कहता है कि अहले बैत का फला दुश्मन ऐसा है, अहले बैत का फला दुश्मन ऐसा है, इमाम हसन को जहर देने वाला ऐसा है, तो लोग उसके साथ बेजारी का ऐलान करते हैं। बच्चों की जी शादी नहीं हो पाती, पड़ोस वाले फतवा लगा देते हैं, उन्हें शिया सही। राफजी कहकर बाइकाट कर देते, जीना हराम कर देते हैं। तो मैं ये कहना चाहता हूं कि ऐसे माहौल में मुहिब्बे अहले बैत और पैरोकारे अहले बैत होना जरूरी है या शिया होना जरूरी है? तो इन दोनों में फ़र्क ही नहीं है ना, जो पैरोकार होता है वही शिया होता है ना, जो पैरवी नहीं करता वो शिया नहीं है, और जो शिया है वो पैरवी करेगा। लेकिन हाँ इस दौर में शिया, देखिए शिया का माने क्या है हजरत, अल्हम्दुलिल्लाह जानते हैं। शिया कहते ही उसे हैं जो पैरोकार हो, जो ताबेदारी करे, और अल्हम्दुलिल्लाह हम भी करते हैं, और हम भी अपने आप को शियाने अली ही कहते हैं, भले से हमारा ताल्लुक अहले तसव्वुफ से है, वो अहले सुन्नत से हो, क्योंकि हम अपनी पैरोकारी का जो मयार बनाते हैं, मरकज बनाते हैं, वो अल्हम्दुलिल्लाह 12 इमाम को बनाते हैं। नमाज आप कैसे पढ़ते हैं? हाथ बांध के, हाथ खोल के? हाँ, इमाम मालिक भी किबला इमाम मालिक भी हाथ खोल के नमाज पढ़ते थे, उन्होंने मोता इमाम मालिक में भी अपना फिक्र अच्छा, बयान किया, जारी किया, तो लिखा है आप उन्होंने। अमीरुल मोमिनीन अलैहिस्सलाम आप को क्या सिर्फ कहेंगे? पहला खलीफा मानते हैं या चौथा खलीफा मानते हैं? जी, तो आप फुल हजरत ऑपरेशन अमीरुल मोमिनीन डॉक्यूमेंट्री शेख आदर अब्दुल जिलानी साहब की एंड दीगर सूफ़ी कलाम हजरात सूफ़ीवान